Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aries Ascendant and the predictions for the month of August 2023. So for this month, the Ascendant Lord is going to be in your fifth house of intellect, progeny, education and speculation till 17th of August. And after that, it is going to move to the sixth house for the rest of the month. Now, sixth house signifies diseases, debt, open enemies and arguments. So time frame till 17th of August is very good for learning new things, but after that the rest of the month is going to be challenging due to presence of Mars in this negative house of 6. There is a very high probability that you are going to get into conflict and arguments with your peers, especially if you are in the service related arena or you are holding a job, and this is something that you should actively watch out for in the second half of August. Mars also rules over your 8th house, and time after 17th of August is also not good from the health perspective, because the 8th house lord in the 6th house would mean that you have to be very careful about your health. If you have servants in your house, then you need to treat them with respect, and you should also feed birds regularly from 18th to 31st of August. If you involve yourself in a daily workout, or you go for a jogging, or you sleep on ground, then this will help you to mitigate this tricky position of Mars in the month of August. Venus is the lord of self-earned wealth, which is the second house, and it is going to become retro from 7th of August, and it is going to occupy your 4th house throughout the month. So all these people who are in the businesses that is related to real estate, vehicles, hospitality and education will see a favorable time in their business in the month of August. This month will also be good for those people who work from home and people who are in the business of private tutoring or coaching. Sun is going to be in the fifth house in its own sign from 17th of August. A temporary stellium of Sun, Mercury and Mars will get created, and after couple of days Mars is going to move out to the sixth house, but Sun and Mercury will continue to be conjuncted in the fifth house, and they will be aspected by Jupiter from the fifth aspect and Saturn from the seventh aspect. So whenever Jupiter and Saturn aspect any particular house, then that event materializing in that particular time frame, that probability becomes very high. So in this case, you will see a very strong results coming from the fifth house, especially after 17th of August when Sun moves into the fifth house. If you happen to be engaged in the arenas that are related with the fifth house, so if you are into education, or you are an artist, or you do any work that involves creativity, or you are a student or a speculator, then this month is going to be very rewarding, especially the second half. Also see a very strong improvement in your relationship with your kids, and if you're planning for a child, then also this month is going to be very favorable for you, because both the Jupiter and Saturn are also aspecting the fifth house lord, which is present in its own sign. So all of these are very favorable combinations for getting success in the child planning. So if you are a speculator, then the dates which are very favorable for you in the month of August are 17th and 18th of August and 26th and 27th of August. Jupiter coming in the first house is going to provide stability in your life from April 23 to April 24, but this is not a time to change your job, because the sixth house lord is also passing through the fifth. So it is considered as negative for progress at the job front, but you should keep on holding your job during this time, because Jupiter is protecting the sixth house lord. So there is no risk of losing your job in the month of August. And this benefic aspect of Jupiter is also going to help you avoiding any kind of issues at the work front which may escalate in with time. So all those people who want to get married, they should wait till the beginning of November, because this Rahu Jupiter conjunction will make sure that Rahu is going to pull down the benefic aspects of Jupiter. So if you look overall, this is going to be a mixed month for your ascendant. The first half is pretty good for pursuing learning and education, but the later half is something that you need to look after your health, and you should avoid arguments. So time frame from 18th of August to 31st of August is a bit tricky, and if you follow the remedies that I have suggested earlier in the video, then you should be able to navigate this month in a smooth manner. So that's the summary for you for this month.
If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मेष लग्न के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्नेश की बात करें तो लग्नेश मंगल आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे 17 अगस्त तक, जिससे कि आप व्यक्ति की बुद्धि, उसकी संतान और उसके शेयर बाजार में सफलता की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। इसके बाद यानी 17 अगस्त के बाद मंगल आपके छठवें भाव में चला जाएगा, जहां पे वो 18 अगस्त से लेकर महीने के आखिरी तक विद्यमान रहेगा। तो पहला जो 17 दिन है 1 से 17 अगस्त तक का समय, ये बहुत अच्छा है नई चीज़ों को सीखने की दृष्टि से। लेकिन इसके बाद का समय थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में जाना यानी कि व्यक्ति के जीवन में झगड़े का इन्वॉल्वमेंट होना। अगर आप कहीं पर भी कोर्ट कचहरी वगैरह में कोई मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी सुनवाई इस महीने में ना हो, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट जाने की संभावना बनती है। मंगल आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी का छठवें भाव से गुजरना भी आप स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, और इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहना है 18 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में। अगर आपके घर में नौकर चाकर हैं तो इस समय में आपको उनसे कुछ भी बुरा भला आपको नहीं कहना है। और इसके अलावा अगर आप इस समय में पक्षियों को दाना डालते हैं 18 अगस्त से 31 अगस्त में, तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है इस तरह के प्लेसमेंट को पॉजिटिव इस चीज़ों में कन्वर्ट करने का। और अगर आप अपने आप को वर्कआउट करते हैं यानी जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, कोई भी जॉगिंग करने जाते हैं या ज़मीन पर सोते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं मंगल के दुष्प्रभाव को हटाने के लिए जब वो छठवें भाव से गुजरता है। तो अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं अगस्त के महीने में, और ये इसमें से काफ़ी हद तक सितंबर में भी अप्लाई होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे काफ़ी समय तक बैठा रहेगा। लेकिन 18 अगस्त से 31 अगस्त का समय ऐसा है जब आपको ये सारी रेमेडीज़ को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप मंगल के दुष्प्रभाव से बच सकें। आपके लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, और द्वितीय भाव से व्यक्ति स्वयं का कमाया हुआ धन देखता है। इसके अलावा पार्टनरशिप का या बिजनेस का भी स्थान है, जिसके कि शुक्र आपके कुंडली में सिग्निफिकेटर हैं। तो शुक्र चौथे भाव में वक्री अवस्था में बैठे रहेंगे 7 अगस्त से लेके महीने के आखिरी तक। और यहाँ पे शुक्र का बैठना ये दिखाता है कि अगर आप जमीन जायदाद के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या आप व्हीकल्स से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस जिसे हम कहते हैं, या आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा निकलेगा और आपको वहाँ से धन आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग घर से काम करते हैं, कोविड के बाद बहुत से लोगों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया और वो घर से ही उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा अगर आप स्वयं कोई प्राइवेट कोचिंग देते हैं, आप किसी भी तरह का प्राइवेट ट्यूटर का जॉब करते हैं, तो भी ये प्लेसमेंट आपके लिए पैसा लाके देने का काम करेगा अगस्त के महीने में। अभी सूर्य अपने स्वयं के भाव में आ जाएंगे 17 अगस्त से, और यहाँ पे पहले टेम्परेली सूर्य और बुध के साथ मंगल का भी समावेश होगा, लेकिन ये 2 दिन बाद मंगल आपके छठवें भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य बुध की युति पूरे महीने बनी रहेगी 17 अगस्त से 31 अगस्त तक के समय में। और यहाँ पे गुरु और शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो जब भी गुरु और शनि एक साथ किसी भाव को देखते हैं तो उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को आपके जीवन में परिणाम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो भी पंचम भाव से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, यानी शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, एजुकेशन में हैं, जो भी कलाकार लोग हैं, उनके सबके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ पे जब आएगा 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक का समय इन सभी के लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा कहला सकता है। इसके अलावा अगर आप संतति प्लान करने का काम कर रहे हैं इस समय, तो भी ये बहुत अच्छा समय है उसके लिए, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। अगर आप शेयर बाजार में फेवरेबल डेट्स देखेंगे तो 17, 18 अगस्त और 26, 27 अगस्त, ये 4 दिन बहुत अच्छा समय है शेयर बाजार से पैसा कमाने की दृष्टि से। अगर आप स्टूडेंट ही हैं तो गुरु की ही 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो अभी बहुत अच्छा समय चल ही रहा है, और पूरे अगला 1 साल तक ये गुरु की दृष्टि उनको फेवर करती रहेगी। गुरु का प्रथम भाव में आना यानी आपको आपके जीवन में स्थायित्व प्रदान करना है। इस तरह के प्लेसमेंट में व्यक्ति का वजन भी बढ़ता है, उसकी हर तरह से फिजिकली तरक्की होती है। लेकिन ये समय नौकरी चेंज करने की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध छठवें भाव के स्वामी है और वो 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो छठवें भाव का नेगेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो उसको टालिए।
आपकी अभी जहाँ पर भी करंट जॉब में आप हैं उसमें स्थिति अच्छी ही रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन गुरु की पांचवी दृष्टि आपके छठवें भाव के स्वामी पे पड़ रही है, तो वो आपकी नौकरी नहीं जाने देगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कार्यस्थल पर ही जुटे रहें और जम के मेहनत करते रहें। इसके अलावा जितने भी लोग शादी करना चाहते हैं, मैंने पिछले महीने में भी ये बात बताई थी कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और जब तक गुरु राहु के चंगुल से मुक्त नहीं हो जाता, जो कि अक्टूबर के एंड तक का समय है, तब तक आपको शादी करने से बचना चाहिए। उसके बाद का समय यानी 1 नवंबर से लेके अप्रैल 2024 तक का समय ऐसा रहेगा जो आपके लिए शादी करने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, और कोई दुष्प्रभाव भी आपकी कुंडली पर नहीं रहेगा नेगेटिव प्लैनेट का। अगर आप कुल मिलाकर देखिए तो ये आपके लिए एक मिला जुला महीना है, क्योंकि जो पहले 17 दिन हैं जब तक मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, तब तक का समय बहुत अच्छा है कुछ नई चीज़ें सीखने का। शेयर बाजार में पैसा लगाने की दृष्टि से भी अच्छा समय है, और आपके संतान से संबंध इंप्रूव करने में भी अच्छा समय है। लेकिन इसके बाद जब मंगल आपके छठवें भाव में चले जाएंगे तो 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय ऐसा है जब आपको सावधान रहना है, और अपने जो भी सहभागी है कार्यस्थल पे, खास करके अगर आप नौकरी करते हैं तो उनसे विवाद को आपको टालना है। आपको किसी भी तरह का वाद विवाद से भी बचना है, क्योंकि लग्नेश का छठवें भाव में जाना यानी कि व्यक्ति की झगड़ा करने की प्रवृत्ति को दिखाता है, और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहलाती है अगर आप प्लेसमेंट की दृष्टि से देखें तो कुल मिला के मिला जुला महीना है। लेकिन जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं और वाद विवाद से बचते हैं, तो इस समय में भी आपको अच्छा महीना देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। तो ये आपके लिए समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।